In many parts where protesters are storming and setting fire to ruling party leader, Nepalese Congress Party President Sher Bahadur Deuba's residence. Political leaders essentially coming under attack is actually one of the first expressions of growing dissent and dissatisfaction with the administration, isn't it? We've seen it in our neighboring countries of Bangladesh and Sri Lanka, and today it's being seen in our neighbor Nepal. Yeah, just to add on from my part as I'm leaving, there were very few casualties during the protest in neighboring countries, for example, in Indonesia and Bangladesh. But government has no assumption, and they had no sort of baseline on how this protest is going to impact. And they have underestimated the demands put forward by youths, not at this time, also during the time of earlier social media ban 2 years ago, particularly on TikTok. So youths in Nepal have been demanding for a service delivery and a good governance for a long time. And this time it happened with the banning of social media outlets, which irritated youngsters across Nepal, including Kathmandu and other major cities. So this is why these incidents happen. But there is no ground for authorities to be excused. I think they should be prosecuted, and this is the demand of the Gen Z group and now almost all citizens residing in Nepal. The atrocities, people responsible for atrocities, particularly coalition government, the coalition leadership, Dewa and Oli, and the ministers and the authorities, those who directed security forces to kill protesters, should be prosecuted, should be suspended, and they should be brought into justice. This is what, at this moment, youths in Nepal and citizens are demanding with. That's what the youth are demanding at this point in time. Fresh elections is also what they're seeking at this point in time, Lakshmi, with many of them talking about the fact that this government has to be done away with. It's time to hold fresh round of elections. Nepotism is a charge that has been made again and again that, the sons and daughters of the rich and mighty there in the country are enjoying. They don't even live in Nepal. All right, I'm going to come back to you, Lakshmi. We'll listen into this report from Amit first. जो आपका था वो हिंसक प्रदर्शन हिंसक हो जाएगा। अब प्रदर्शन शांतिपूर्ण से कुछ नहीं हो रहा है इधर, इसलिए अब हम हिंसक बन रहे हैं। मैंने देखा कि कई सारे आपके साथी जो इंस्टॉलेशन थे उसको तोड़ के ले जा रहे थे, ट्रैफिक पुलिस का इंस्टॉलेशन तोड़ा। आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पे है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जहां आपको आसमान में जगह जगह पे उड़ता हुआ धुआं दिखाई। आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पे है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, जहां आपको आसमान में जगह जगह पे उड़ता हुआ धुआं दिखाई देगा। ये गौशाला का इलाका है जहां पे प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय पहले वो इकट्ठा हुए, जो ट्रैफिक पुलिस का इंस्टॉलमेंट है उसको तोड़ा, टायर्स को आग लगा और उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से टीयर गैस शेल्स फायर किए गए। लगातार हम जब इस इलाके में थे तो हमें धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी, टीयर गैस शेल चल रहा था। जो प्रदर्शनकारी उस वक्त करीब थे उनसे समझते हैं। सर, सामने से क्या फायर हो रहा था? टीयर गैस तो हमने देखा। टीयर गैस फायर कितने राउंड्स फायर हुए हैं? लगभग 10-15 राउंड फायर हुए हैं। अब आप लोग यहाँ इकट्ठा थे, यहाँ से भीड़ आगे गई है, कहाँ जा रही है? माइती घर मंडल, वहाँ क्या है? वहाँ हमारा जंक्शन है, भेला होने का जगह है जी, जहाँ से स्टार्ट होता है आंदोलन जी, वहीं जाकर हम मिलेंगे। तो अब आपको क्या ये डर लग रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो आपका था वो हिंसक प्रदर्शन अब हिंसक हो जाएगा? अब प्रदर्शन शांतिपूर्ण से कुछ नहीं हो रहा है इधर, इसलिए अब हम हिंसक बन रहे हैं। मैंने देखा कि कई सारे आपके साथी जो इंस्टॉलेशन थे उसको तोड़ के ले जा रहे थे, ट्रैफिक पुलिस का इंस्टॉलेशन तोड़ा। तो क्या अब शांतिपूर्वक प्रदर्शन से आपका भरोसा उठ रहा है? कल 19 आदमी के स्टूडेंट का मौत हो गया ना जी, इसके बाद में शांतिपूर्ण आंदोलन हो ही नहीं सकता। शांतिपूर्ण आंदोलन होने के लिए शांतिपूर्ण ही होना चाहिए था। कल फिर फायर करना नहीं चाहिए था। 19 लोग स्टूडेंट का मृत्यु हो गया है ना। सरकार इस बहाने लेकिन ज्यादा आप पे क्रैकडाउन कर पाएगी ना? वो कोई कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। आज भी कर्फ्यू है ना इधर, तो हम हमारे कुछ नहीं है, कुछ
कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्या नाम हमको। है आपका? मेरा नाम किशोर भुजेल। क्या करते हैं आप किशोर? मेरा व्यवसाय है। जी, व्यवसायी, छात्र और बुजुर्ग लोग भी आज के प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, थोड़ा एक बार मैं करीब जाके आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। वहाँ चौक पे एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं तो दूसरी तरफ नेपाल की आर्म्ड पुलिस है जिन्होंने टीयर गैस शेल्स छोड़े हैं। और लगातार जगह जगह बस इस वक्त काठमांडू में कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पे सरकारी संपत्ति को प्रदर्शनकारी टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण कल तक था, लेकिन कल जिस तरह से लोगों की जान गई है, प्रदर्शनकारियों की, जेनजीज की जान गई है, उसके बाद ये संभावना कम होती दिख रही है। आज कर्फ्यू के बावजूद लोग बड़ी संख्या में अलग अलग इलाके में एक प्लान के तहत ऐसा लगता है कि जगह जगह से जा रहे हैं। देखिए अभी भी आपको दिखाई देगा प्रदर्शनकारी वहाँ पे जो आग लगा हुआ है उसमें सरकारी संपत्ति को ला के रख रहे हैं। और ये ट्रैफिक लाइट था जिसको तोड़ा गया है प्रदर्शनकारियों द्वारा। नाराजगी इस बात को लेकर है कि कल 19 लोगों की जान गई है। और Massive chaos in fact, our neighboring country of Nepal for various reasons. Remember, viewers, the young people of Nepal have been saying this isn't just about the social media ban. Of course, that was the trigger, but this has been simmering for days and weeks together, given a nepotism, corruption charges that the government is facing, and that they need to go is the word from the ground.